हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बात करते हैं एनसीईआरटी के सेल द यूनिट ऑफ लाइफ चैप्टर का एनसीईआरटी के एक्सरसाइज। तो स्टूडेंट्स द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। देखिए कौन सा इसमें से करेक्ट नहीं है। आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द सेल। तो क्या लगता है करेक्ट है या नहीं? पहले चारों ऑप्शंस पढ़ते हैं। रॉबर्ट ब्राउन डिस्कवर्ड द सेल, सैकलिडन एंड स्वान formulated the cell theory, Rudolf Virchow explained that the cells are formed from pre-existing cells। जो सेल्स हैं वो पहले की सेल से बनती हैं। थर्ड एंड डी जो है वो देखते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म कैरिड आउट इट्स लाइफ एक्टिविटी विद इन ए सिंगल सेल। तो यूनिसेलुलर का मतलब एक सेल। तो सिंगल सेल के अंदर ही सारी एक्टिविटीज़ जो होती हैं लाइफ की वो हैपन होती हैं। तो बिल्कुल सही बात है। इसमें जब पूछा क्या है नॉट करेक्ट। मार्कर थोड़ा सा साइज ब्रश का हैवी करते हैं। तो जो डी है वो बिल्कुल करेक्ट है। विराको एक्सप्लेन द सेल्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, बिल्कुल राइट। शैकलिटन एंड स्वान फॉर्मुलेटेड द सेल थ्योरी, एब्सोल्युटली राइट बात। तो 3 ऑप्शन हैं वो राइट हैं, जबकि क्वेश्चंस की डिमांड है कि आप वो बताइए जो राइट नहीं है, नॉट करेक्ट। द फर्स्ट वन इज नॉट करेक्ट एज you know very well. The cell was discovered by Robert Hooke. Robert Hooke discovered the first shell. So the option first A is incorrect. Okay, students, next we have to see new shells generate from. I have told you very well, the cells are formed from pre-existing cells. In previous question we discussed Rudolf Virchow explained the phenomena of formation of cells, how they are forming. There is no any kind of magic through which cells are generating. There is a simple process, and that is the cells are formed from pre-existing cells. Option number 3 is saying the pre-existing cells, but option A is saying the bacterial fermentation, B is the regenerated of old cells, and third is the abiotic material. But you know very well the biogenetic theory says that cells can only arise from pre-existing if means पहले से मौजूद सेल से ही नई सेल बन सकती है। आपको कंफ्यूज करने के लिए एक ऑप्शन है रीजनरेशन ऑफ ओल्ड सेल्स। देयर इज नो ओल्ड सेल्स, they are died cells. There is no concept of old or new. They are formed from pre-existing by cell division. You know very well. The only complete cell in favorable condition can give rise to new cells, and in formation of new cells is only and only possible when all the conditions they need, whatever they need to form a new cells, they should be present, and it happens only when they are present. So according to Rudolf Virchow, this was formed and given by Rudolf Virchow, cells are formed from new cells. Okay students, and there was another concept I have to tell you. Weizmann, there was a scientist Weizmann who cut down the tail of mice about 15 times. He cut down the tail of mice. He found that every time
every time tail in every next generation the tail was present. So there are two type of cells. One is the somatic cells. If there is any kind of change in somatic cell, it doesn't carried out in next generation. But another cell is the germ cell. If anything is changed in germ cell, that will be carried out, that will go in next generation. तो इसका कहने का मतलब ये था कि अगर उन्होंने जो विजमैन ने क्या किया, 25 चूहे लिए, मतलब 25 चूहे की लगातार एक जनरेशन के बाद एक जनरेशन उन्होंने उसकी पूंछ को काट दिया। अब उसने देखा कि अगली जनरेशन में भी चूहे के से पूंछ के साथ जन्म ले रहा है, अगली जनरेशन में ये 25 बार तक चला। तब उन्होंने बताया कि सेल्स ना दो प्रकार की थी, एक जर्म सेल और एक सोमेटिक सेल। सोमेटिक सेल्स वो सेल्स होती हैं अगर उनको हम काट भी देते हैं और उनके अंदर कुछ भी चेंज करते हैं, वो आने वाली पीढ़ियों में ट्रांसफ़र नहीं होते वो गुण, तो उन सेल्स को बोला गया जर्म सेल, सोमेटिक सेल। और जो सेल्स जिनके अंदर चेंज अगर हम करते हैं और उनकी चेंज होने की वजह से आने वाली सेल्स के, आने वाली जनरेशन्स के अंदर की ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर चेंज आ जाते हैं, तो वो हो जाता है, वो सेल्स कहलाती हैं जर्म सेल्स, जो सेक्सुअल सेल्स होती हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह का ये कंसेप्ट आने वाली क्लास के अंदर +2 के अंदर पढ़ोगे। इज़ अनफ फॉर यू राइट नाउ। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मैच द फॉलोइंग: क्रिस्टिया, सिस्ट्रीनिया एंड thylakoids. Now option in the opponent, their option is the flat membrane sac in stroma, enfolding in mitochondria, disc-shaped sac in Golgi apparatus. So you have to right now match these, and you will see the cisternia is, if you see the structure of mitochondria, you will find the inner membrane of mitochondria is folded. It is formed a shoe-like structure. So what are the cisternia? Cristia are the infolding of mitochondria. And if we talk about the cisternia, cisternia are a crow-shaped like structure present in the Golgi apparatus. Disc-shaped like crow, a disc-shaped like sac in Golgi apparatus. And what is their function? Transport of materials. Whatever is formed in cells, nucleus, after the nucleus there is ER, endoplasmic reticulum. Whatever the material is formed there, it transferred to other part of the body, other part of the cell, and to other cells. It's transported through Golgi apparatus. Golgi apparatus, you can say. Apparatus means this is a group of parts. And the third is the thylakoids. You know very well, thylakoids are present in stroma. Flat membranous sac in stroma. Flat membranous, 1 रुपये से 1 रुपये के ऊपर 1 रुपये 1 रुपये, इस तरह के आप स्ट्रक्चर देखते हो जो कि लीव्स में प्रेजेंट होती है, जो फोटोसिंथेसिस वाला पार्ट में, तो वो स्ट्रोमा के अंदर, स्ट्रोमा क्या, मैट्रिक्स के अंदर प्रेजेंट होती है। तो वहाँ पे जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है उसे बोलते हैं थाइलैकोइड्स। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये फोटोसिंथेसिस में हेल्प करती है। नेक्स्ट नाउ वी हैव टू स्टडी, वी हैव टू सी विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। स्टूडेंट्स, आपके लिए ज़रूरी है कि आप स्टेटमेंट को जरूर पढ़ें अच्छे से। देखिए इसमें पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, कि सही क्या है। अब आपको सही क्या है पढ़ने के लिए, जो गलत है उसको चूज करना है। द सेल्स ऑफ आर लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव न्यूक्लियस। देखिए जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर सेल्स हैं, बिल्कुल गलत बात। क्योंकि अगर हम प्रोकैरियोट की बात करें, प्रोकैरियोट्स के अंदर तो जो न्यूक्लियस है वो होता ही नहीं है, जो न्यूक्लियस जैसी कोई स्ट्रक्चर नहीं होती वहाँ पे। नेक्स्ट इज द बोथ एनिमल एंड प्लांट सेल हैव
वेल डिफाइंड सेल वॉल। अब सेल वॉल तो सिर्फ प्रेजेंट होती है प्लांट के केस में, एनिमल के केस में सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, तो दिस इज आल्सो रॉन्ग। एंड इन प्रोकैरियोट्स देयर इज नो मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल। Absolutely right. I have told you in earlier a lecture also, there is no membrane bounded organelle present as like as they are present in eukaryotes. So in prokaryotes there are no membrane like present organelle present, and option D is the cell are formed of de novo from abiotic material. Absolutely right. जो जितना भी हम जो भी खाते हैं उसका अल्टीमेट बनता क्या है, सेल्स का फॉर्मेशन होता है, जो बॉडी की रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो ये डी न्यू फॉर्मेशन का मतलब होता है, एक तो होता है इन विट्रो आर्टिफिशियल तरीके से आप कोई चीज़ बनाते हो, एक होता है डी नोवो की मतलब अपने बॉडी अपने आप बना रही है, मटेरियल सप्लाई हम कर रहे हैं, और मटेरियल वो क्या है, एबायोटिक है। बायोटिक बॉडी से मिला हुआ, एबायोटिक बाहर से कुछ खा के खाते हैं उसका आ जाता है वो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसका ऑप्शन थर्ड है वो वाला करेक्ट है, बाकी ये ऑप्शन सारे गलत है, डी भी गलत है, डी न्यू फ्रॉम एबायोटिक। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द मेसोसोम इन प्रोकैरियोटिक सेल, मेंशन द फंक्शन ऑफ इट परफॉर्म। नाउ you have to see mesosomes is the convoluted membrane structure formed in prokaryotic cells by the invagination of plasma membrane। जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ये कहीं कहीं जगह ऐसे इनफोल्डिंग हो जाती है, उसी को क्या बोलते हैं, मेसोसोम। और अब ये फंक्शंस क्या करती है, इट हेल्प इन एक्सटेंशन इन सिंथेसिस ऑफ सेल वॉल बनाने में, रेप्लिकेशन में ऑफ डीएनए के अंदर हेल्प करती है, और फॉर्म इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम्स इन डॉटर सेल्स। और मोस्ट इम्पोर्टेंट जो इसका फंक्शन है वो है इंक्रीज सरफेस एरिया ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इसी तरह जो माइटोकॉन्ड्रिया था उसके अंदर भी जो ऐसे स्ट्रक्चर थे जिसमें क्रिस्टिया वगैरह थे, उसका भी एक यही होता है कि वो एक सरफेस, अगर इसको सीधा करके देखें या थोड़ा सा इसको सही करके देखें, खोल के देखें, तो ये सरफेस एरिया को बढ़ा देता है। इट हेल्प इन सीक्रेशन प्रोसेस एज वेल एज बैक्टीरियल रेस्पिरेशन। तो ये सीक्रेशन के अंदर और रेस्पिरेशन के अंदर भी हेल्प करता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो तीनों के दोनों आप याद रखोगे। एंड ना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं, 6 का क्या कहता है कि हाउ डू न्यूट्रल सोल्यूट्स मूव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो न्यूट्रल सोल्यूट्स होते हैं वो, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये, इसके अंदर से वो मूव कैसे करते हैं। कैन पोलर मोलिक्यूल आल्सो मूव अक्रॉस इट इन द सेम वे, इफ नॉट, अगर नहीं तो हाउ आर दीज ट्रांसपोर्टेड अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो ये अक्रॉस द मेम्ब्रेन कैसे ट्रांसपोर्ट की जाती है। अब बात करते हैं मेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या है, आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल। जो सेल है उसकी आउटर कवरिंग क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब काम क्या करती है, सेपरेट इट फ्रॉम द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट से क्या करती है, सेपरेट करती है। अब बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया का आउटर मेम्ब्रेन है ये एनवायरनमेंट से, इसको अंदर के मटेरियल को एनवायरनमेंट से सेपरेट कर दिया। इट रेगुलेट मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इनटू द सेल एंड आउट ऑफ, ये रेगुलेट करती है भी किसको बाहर जाना है और किसको अंदर आना है। इट अलो द एंट्री ओनली some substances and prevent movement of other material, hence membrane is selectively permeable। ये ऐसा नहीं है हर किसी को अंदर आने देती है या अंदर से जो हर किसी को बाहर जाने देती है, ये सेलेक्टिवली परमिएबल है, मतलब सेलेक्टेड सब्सटेंसेस के लिए। द मूवमेंट ऑफ न्यूट्रल सॉल्यूट अक्रॉस द मेम्ब्रेन की बात करते हैं अब। तो न्यूट्रल जो मोलिक्यूल्स होते हैं मूव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाय सिंपल डिफ्यूजन, पैसिव डिफ्यूजन। सिंपल पैसिव डिफ्यूजन का मतलब क्या है, पहले तो डिफ्यूजन समझो। डिफ्यूजन इज द मूवमेंट ऑफ मोलिक्यूल फ्रॉम रीजन ऑफ हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। तो मतलब ये कोई सेल है, अब ये इसके बाहर जो है एनवायरनमेंट, उसके अंदर किसी चीज़ की हाई कंसंट्रेशन है, मान लो CO2 ज़्यादा है, अंदर CO2 कम है सेल के अंदर। अब अंदर CO2 जो है
वो कम है, CO2 जो है इसके अंदर जो है CO2 कम है। अब इसके ना तो अंदर जा रहा है ना अब से अंदर। अब ये मूवमेंट क्या है, डिफ्यूजन क्या है, हाई कंसंट्रेशन से मॉलिक्यूल का लो कंसंट्रेशन की तरफ मूव करना। मतलब यूँ मानो पहाड़ है कोई ये, अब पहाड़ से ऊंचाई से नीचाई की तरफ चीज़ जाती है, तो मतलब हाई से लो की तरफ मूव करना, ठीक है। और ये थोड़ा सा पैसिव है, पैसिव डिफ्यूजन मतलब ऑटोमेटिक। एक तो होता है एक्टिव डिफ्यूजन और पैसिव डिफ्यूजन। एक्टिव डिफ्यूजन का मतलब यूज बाय यूजिंग एनर्जी, पैसिव मतलब नेचुरली, ठीक है स्टूडेंट। मूवमेंट ऑफ, अब बात करते हैं मूवमेंट ऑफ पोलर मॉलिक्यूल। अब द पोलर मॉलिक्यूल कौन से होते हैं, जो डाइपोल शो करते हैं। सेल मेम्ब्रेन इज द मेड ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर एंड प्रोटीन। तो आपने जब आपको नोट्स दिए तो पढ़ा होगा कि सेल मेम्ब्रेन में क्या होते हैं, ऊपर लिपिड्स नीचे लिपिड्स, बीच में टर्नल प्रोटीन्स होती हैं, ठीक है। तो किसके बने हुए हैं, बाइलेयर है, ऊपर एक ट्राइग्लिसराइड की लेयर है, नीचे लेयर है ऐसे एक हेड टेल, ऊपर फिर हेड टेल, ऊपर हेड टेल। तो इसी तरह क्या है, लेयर है, कुछ इसमें डिप्ड इंटीग्रल प्रोटीन है, कुछ इसके ऊपर के प्रोटीन है जो ऊपर से दिखते हैं, कुछ नीचे से दिखते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इसमें क्या है, द मूवमेंट ऑफ पोलर मोलिक्यूल अक्रॉस द नॉन लिपिड लेयर रिक्वायर कैरियर प्रोटीन। अब अगर पोलर मोलिक्यूल है, मान लो ये बाहर की लेयर है, ये जो लेयर है, अब इस यहाँ पे कोई पोलर मोलिक्यूल है, अगर इसको अंदर क्रॉस करना है, अब पोलर मोलिक्यूल को अगर क्रॉस करना है, जो कि मेम्ब्रेन क्या है, नॉन पोलर लिपिड बाइलेयर है, अब इसको कोई न कोई प्रोटीन चाहिए। तो इसका मतलब मान लो यहाँ पे कोई इंटीग्रल प्रोटीन है, मतलब पूरा का पूरा प्रोटीन है, यहाँ पे क्या नहीं है, यहाँ पे लिपिड नहीं है, ये इसके अंदर जाएगी और इसके अंदर से बाहर निकल आएगी टनल से। कैरियर प्रोटीन और इंटीग्रल प्रोटीन हैविंग सर्टेन एफिनिटी फॉर स्पेसिफिक सॉल्यूट के लिए। तो कैरियर प्रोटीन कौन सी होती हैं, वो प्रोटीन होती हैं जिनके पास कुछ न कुछ चिपकने के लिए, एफिनिटी के लिए कुछ पार्टिकल्स होते हैं जो क्या करते हैं, इसके साथ चिपक जाते हैं और इसको रास्ता देके बाहर निकलवा देते हैं। एज ए रिजल्ट दे फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्ट ऑफ मोलिक्यूल अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो जो कैरियर प्रोटीन होते हैं वो क्या काम करते हैं, हेल्प करते हैं इसको ट्रांसपोर्ट करवाने में। तो अगर पोलर मोलिक्यूल को अगर क्रॉस करना है बाई लिपिड की नॉन पोलर लिपिड की बाई लेयर है, इसको क्रॉस करना, तो उसको क्या चाहिए, उसको चाहिए इंटीग्रल प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं स्टूडेंट्स। नेम द टू सेल ऑर्गेनेल्स दैट आर डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड एंड व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दीज टू ऑर्गेनेल्स, स्टेट द फंक्शंस, ड्रॉ द लेबल डायग्राम। अब देखिए दो स्ट्रक्चर, ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, सीधा दो डबल लेयर्ड में क्या है, एक तो माइटोकॉन्ड्रिया है और दूसरा क्लोरोप्लास्ट है। अब माइटोकॉन्ड्रिया को अगर खोल के देखें तो इसमें क्या है, बाहर का एक कवरिंग, उसके अंदर फिर मेम्ब्रेन, उसके अंदर ऐसे एक स्ट्रक्चर जिसको क्या बोलते हैं, क्रिस्टी, जिसके स्ट्रक्चर में जो हुक होते हैं इसको क्रिस्टिया बोलते हैं। एक इनर मेम्ब्रेन, आउटर मेम्ब्रेन, एक इनर मेम्ब्रेन स्पेस हो गया, अंदर मटेरियल होता है जिसको मैट्रिक्स बोलते हैं, कुछ ग्रेन्यूल्स होते हैं, और जो मैट्रिक्स के ऊपर कुछ ऐसे स्ट्रक्चर होते हैं ऐसे, जिसको बोलते हैं एटीपी सिंथेस पार्टिकल्स, जो एटीपी को सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। तो अब बात कर लें थोड़ी सी यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, डिवाइडेड किया गया है इनर एंड आउटर मेम्ब्रेन के अंदर। अब इसमें भी क्या होता है, दो अलग अलग पार्ट डिवाइड होते हैं, एक तो इनर कंपार्टमेंट और एक आउटर कंपार्टमेंट। आउटर कंपार्टमेंट जो है वेरी पोरस होता है, कंटेन ऑर्गेनेल्स होते हैं उसके अंदर, एंड वाइल इनर मेम्ब्रेन इज डीपली फोल्डेड। इनर मेम्ब्रेन वाला पार्ट होता है वो फोल्डेड होता है, और जो मैट्रिक्स वाला पार्ट, आउटर पार्ट होता है, वो क्या होता है, मैट्रिक्स टाइप पार्ट होता है, पोरस होता है। दीज फोल्ड आर नोन एज क्रिस्टिया। तो मैं आपको बता चुका है क्रिस्टिया बोलते हैं। क्रिस्टिया का मेन काम क्या होता है, इंक्रीज सरफेस एरिया, थोड़ी देर पहले मैंने बताया था। क्रिस्टिया मतलब यूँ मानो ऐसे रबड़ छल्ले की तरह होता है,
क्योंकि उसने सरफेस एरिया बढ़ा देता है, वो सरफेस एरिया बढ़ जाता है। रबड़ मतलब रबड़ है उसको बढ़ा सकते हैं, तो वो अंदर जो एरिया है उसका वो बढ़ाने के काम आता है, मेन फंक्शन। अब बात करते हैं मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया कंटेन स्पेसिफिक एंजाइम। माइटोकॉन्ड्रिया की मेम्ब्रेन होती है, उसके ऊपर क्या होते हैं, स्पेसिफिक एंजाइम होते हैं, वो स्पेसिफिक फंक्शंस करवाते हैं उससे, रेस्पिरेशन जैसे। हंस द माइटोकॉन्ड्रिया आर द साइट ऑफ एरोबिक रिस्पिरेशन। तो एरोबिक जो रिस्पिरेशन है उसकी साइट कौन है, माइटोकॉन्ड्रिया। तो आपको एक ही पता होना चाहिए, एक ही फंक्शन, दो फंक्शन ये पता होना चाहिए। एंड हाउ इज देयर ओन डीएनए। तो जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है उसके पास अपना खुद का डीएनए भी होता है, ठीक है। क्योंकि देखो सेल, कोई भी सेल है, सेल के अंदर फिर माइटोकॉन्ड्रिया है, तो सेल के अंदर अपना न्यूक्लियस होता है, उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल खुद का होता है, उसमें माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके अंदर भी अपना खुद का डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, और राइबोसोम्स होते हैं। दे आर एबल टू मेक देयर ओन प्रोटीन, कुछ अपनी प्रोटीन भी बना लेते हैं, और इसीलिए उसको ऑटो सेमी ऑटोनोमस बोलते हैं, क्योंकि पूर्ण रूप से वो अपना सारे प्रोटीन्स नहीं बनाता, कुछ बनाता है, कुछ वो जो मेन सेल होती है उससे लेता है, ठीक है। कुछ मतलब मोस्टली मेन सेल से लेता है, कुछ बनाता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट की बात करते हैं हम क्लोरोप्लास्ट की। तो क्लोरोप्लास्ट जो है, क्लोरोप्लास्ट आर द डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर है, डिवाइडेड इनटू आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन। जो दो डिस्टिंक्ट रीजन्स होते हैं इसके अंदर, एक तो ग्रेना होते हैं, ग्रेना स्टैक ऑफ फ्लैटेड डिस्क। ग्रेना जो होते हैं वो क्या होते हैं, स्टैक ऑफ फ्लैटेंड डिस्क कंटेनिंग क्लोरोफिल मोलिक्यूल। क्लोरोफिल मोलिक्यूल, तो जैसे ये वाले जो स्ट्रक्चर हैं, जो ये वाली देखो, एक पैसा एक पैसा एक पैसा देखा, तो इस जो मटेरियल अंदर ऐसे पड़ा था ये था स्ट्रोमा बताया था मैंने आपको, और ये वाला ग्रेना। तो ग्रेनम बहुत सी हो जाती हैं तो ग्रेनम हो जाता है, एक सिंगल को ग्रेना बोलते हैं, जैसे डाटा डाटम। तो ग्रेना स्टैक होता है फ्लैटेंड डिस्क लाइक कंटेनिंग क्लोरोफिल मोलिक्यूल का, और जो फ्लैटेंड मेम्ब्रेन स्टैक जो होता है इसको बोलते हैं थाइलाकॉइड। थाइलाकॉइड्स ऑफ एडजेसेंट ग्रेना आर कनेक्टेड बाय मेम्ब्रेन ट्यूबुल्स, जिसको स्टेमा लेमिला बोलते हैं। मतलब एक ये है और दूसरा ये है, जब ये कनेक्ट करते हैं वाली, एक को दूसरे से कनेक्ट करने वाली जो एडजेसेंट मेम्ब्रेन है उसको ट्यूब्यूल है, कि ट्यूब द्वारा जो मतलब ऐसे है और दूसरा ऐसे है। अब इन दोनों को कनेक्ट करने वाली ट्यूब है उसको मेम्ब्रेनस ट्यूबुल बोलते हैं, या फिर स्टोमा लेमिलिया बोलते हैं। अब आती है स्ट्रोमा, एक होमोजीनस मिक्सर है जिसके अंदर ग्रेना एम्बेब्ड है। एक होमोजीनस मिक्सचर है ये, जिसके अंदर ग्रेना क्या है, एम्बेब्ड है। मतलब मान लो तालाब के अंदर कोई पिलर बना रखा है, तालाब के अंदर कुछ बना रखा है, ठीक है स्टूडेंट्स। इट कंटेन द सेवरल एंजाइम्स दैट आर यूज फॉर सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन। तो जो स्टोमा है उसके अंदर क्या होते हैं, एंजाइम्स होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन को बनाते हैं। इट आल्सो कंटेन ऑन डीएनए एंड राइबोसोम, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया की तरह ये भी अपना डीएनए और राइबोसोम रखता है। फंक्शंस की बात करें दोनों की, तो फंक्शंस में माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस होते हैं सेलुलर रेस्पिरेशन, मैंने आपको बताया, और प्रोवाइड एनर्जी प्रोवाइड करता है, एटीपी फॉर्मेशन, एटीपीएज एंजाइम बताया था, तो उससे वो एटीपी एक्टिव। उसके बाद बताया अपना डीएनए और आरएनए, और इसके बाद डीएनए और राइबोसोम्स होता है, तो अपनी कुछ प्रोटीन बना लेता है, इसीलिए सेमी ऑटोनोमस ऑर्गन बोलते हैं। बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं इसके पास जो केमिकल सिंथेसिस करते हैं केमिकल्स को, जैसे फैटी एसिड, स्टेरॉइड और अमीनो एसिड्स को। क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो ये सोलर एनर्जी को ट्रेस करता है और यूटिलाइज करता है फूड, प्लांट के अंदर फूड बनाने में क्लोरोप्लास्ट। और प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिस प्रोसेस से ये फूड बनाता है सनलाइट को लेके, उसको फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और इसके पास भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो कि सिंथेसाइज करते हैं कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स। ओके स्टूडेंट्स, it's enough for today. In next video we will do next remaining. Thank you.